if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Then will तो दोस्तों देखिए हमारी टीम निकल चुकी है बेट द्वारका के लिए। तो ओखा से बेट द्वारका 5 किलोमीटर का अंतर है और नाव में बैठ के जाना पड़ता है वहाँ पर। तो वहाँ पर नाव की फ़ीस पर पर्सन की 20 रुपये लगती है, जो कि बिल्कुल ही रिजनेबल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इसका भी एक मज़ा है, क्योंकि यार नाव में बैठना बहुत ही एक नया रोमांच हो गया, नया अंदाज़ हो गया, क्योंकि हमारे लिए कुछ नया था ये। तो चलिए हमारी ट्रिप आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। वहाँ पर क्या क्या है सब कुछ आपको दिखाऊंगा, और उसकी जो जो कहानी है या फिर उसकी जो जो विशेषता है वो आपको बताता रहूँगा। तो चलिए पहुँच चुके हैं अभी हम बेट द्वारका, तो आगे देखते हैं क्या क्या है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का महल यहीं पर हुआ करता था। द्वारका के न्यायाधीश भगवान श्री कृष्ण ही थे। माना जाता है कि आज भी द्वारका नगरी इन्हीं की कस्टडी में है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ का भक्तजन द्वारकाधीश के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए तो एक पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हीं चावल को खाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर की थी, इसलिए यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है।
ऐसी मान्यता है कि मंदिर में चावल दान देने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि एक बार संपूर्ण द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन बेट द्वारका बची रही। द्वारका का यह हिस्सा एक टापू के रूप में मौजूद है। मंदिर का अपना अन्न क्षेत्र भी है। यहाँ मंदिर का निर्माण 500 साल पहले महाप्रभु संत वल्लभाचार्य ने करवाया था। मंदिर में मौजूद भगवान द्वारकाधीश की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि इसे रानी रुक्मणी ने स्वयं तैयार किया था। तो यहाँ से सीधा हम लोग निकल चुके हैं मकरध्वज हनुमान के लिए, जो कि उसको हनुमान दांडी भी बोलते हैं। तो चलिए पहले हम वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं और उसकी पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहते हैं। श्री मकरध्वज हनुमान मंदिर पिता पुत्र के आनंदपूर्ण मिलन का सर्वप्रथम मंदिर है। यह देवभूमि द्वारका जिले के अंतर्गत बेट द्वारका या शंखोदर द्वीप पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आप पिता और पुत्र के दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को। बहुत ही मज़ा आया इस ट्रिप में। तो चलिए वीडियो आगे ले जाते हैं। यहाँ से आपको एक और कहानी सुनाऊंगा मकरध्वज की। श्री हनुमान जी अपने दाहिनी और श्री मकरध्वज बाएं हाथ की ओर है। श्री मकरध्वज का पूर्ण रूप व जांघ के ऊपर हनुमान जी अर्ध रूप ही दिखाता है। श्री मकरध्वज एक राक्षस और सहज रूप से अपने पैरों के नीचे दबाए हुए एवं हनुमान आनंद मुद्रा में प्रतीत होते हैं। इन दोनों के हाथ में कोई गदा नहीं है या कोई अन्य हथियार नहीं है। गुजरात में खुशी तथा प्रसन्नता के भाव को व्यक्त करना दांडी कहा जाता है। अतः मंदिर का नाम श्री हनुमान दांडी संकीर्तन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के महंत के अनुसार भगवान श्री हनुमान हर वर्ष चावल के एक दाने के बराबर पृथ्वी को नीचे जा रहे हैं और श्री हनुमान के इस स्थान को छोड़कर जाते ही इस कलयुग का अंत हो जाएगा। तो सोने की नगरी उस वक्त कैसी थी, उसका म्यूजियम यहाँ पर बना हुआ है, तो आप वहाँ पर ये देख सकते हैं। हमें मंदिर में कैमरा ले जाने की एंट्री नहीं मिली, इसलिए हम आपको वो मंदिर नहीं दिखा पाए हैं, तो हमें उसके लिए खेद है। और हमारा पोर्शन यहीं पर ख़त्म होता है और हम लोग अब वापस जाने के लिए निकल चुके हैं। और इस बार हमने वो नाव में नहीं बैठे जो भीड़ भाड़ से भरी हुई थी, हमने प्राइवेट नाव कर ली यहाँ से। तो कुछ अलग हमें एंजॉय करना था, तो प्राइवेट नाव कर ली। आप देखिए सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस नाव से। तो चलिए आपको सब एंजॉय दिखाता हूँ। और गुजराती है तो गरबा तो करना ही पड़ेगा। तो सब लोग ऐसे ही एंजॉय करते हुए पूरी ट्रिप ख़त्म की हमने। तो चलिए आगे चलते हैं। तेरी चाल बैकलेस सूट विच लगदी कमाल, ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तैनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे खवारियां है किसे दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू करना सोहणीए, एने भी नखरे तू करना सोहणीए, दिल मेरा तेरे नहीं धड़के नी, अज तेरी किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के नी, अज तेरी किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के, अज तेरी किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के नी, अज तेरी किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के। चढ़दी जवानी तेरी चुन्नी आसमानी, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला, गोरे मुख
मुखड़े दे उत्ते तिल काला, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला, सोहणिए रंगां ने होए रूप दे दीवाने।